चलो फटाफट से अपन रिवीजन कर लेते हैं, पहले आप अपने नोट्स निकाल लो। तो चैप्टर में कैसे स्टार्ट किया था? चैप्टर में स्टार्ट किया था विद द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट? एनाटॉमी मींस इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। Anatomy of flowering plants में we started with the types of tissues of plants. So plant tissues कितने टाइप्स के होते हैं हमने बोला? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है and permanent tissue. Meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue can divide further. Permanent tissue cannot divide further. Correct? Next, based on location and based on origin, we can further classify meristematic tissue. Based on location, we can classify meristematic tissue as apical, intercalary, and lateral meristem. And based on the origin or the time of occurrence in the plant life, we can further classify meristem as primary meristem and secondary meristem. Primary meristem occurs early in the life of plant, while secondary meristem appears later in the life. Apical meristem हमने बोला था, it is a type of primary meristem which is of two types, we can say shoot apical meristem and root apical meristem. The left behind cells of shoot apical meristem form axillary bud which are present in the axil of leaves and they may give rise to branches or flower, correct? If axillary bud gives rise to branch, it is known as vegetative bud, and if it gives rise to flower, it is known as reproductive or floral bud. Then we went on to see intercalary meristem. Intercalary meristem is present between two permanent tissues, and this is the meristem which is responsible for regeneration of the parts which are lost to grazing animals. Also, it is a type of primary meristem, correct? Then हमने देखा lateral meristem present along the lateral margin of the stem and roots, and they are responsible for secondary growth of plants, and they are type of secondary meristematic tissue. Then primary and secondary हमने already उसका meaning बता दिया. Then we went on to classify permanent tissue. Permanent tissue हम कैसे classify किया students? Simple and complex permanent tissue. Simple permanent tissue को हमने क्या उसको explanation दिया? Simple permanent tissue मतलब it is made up of single type of cells. Complex permanent tissue is made up of more than one type of cells. Simple permanent tissue के examples हमने बोले parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And then parenchyma के बारे में हमने बोला शेप क्या है उसका? आइसोडायमेट्रिक. कोलेनकाइमा के बारे में हमने बोला इट इज पॉलीगोनल, सर्कुलर, स्फेरिकल. बहुत सारे शेप्स आपको एनसीईआरटी में दिए हैं. स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हमने बोला इट इज सिलिंड्रिकल और ट्यूबुलर. स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स भी हमने पुट किया था, करेक्ट? देन लोकेशन हमने बताया पेरेनकाइमा का कि इट इज प्रेजेंट इन द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. कोलेनकाइमा के लिए हमने बोला बिलो द एपिडर्मिस, देन पेटियोल ऑफ द लीफ एंड देन यंग स्टेम. स्क्लेरेनकाइमा आपने फ्रूट वॉल एंड एवरीथिंग बोला था लास्ट में, उसके याद है? लास्ट 3 लाइंस में एग्जांपल्स थे कहां कहां प्रेजेंट होता है. देन अबाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, पेरेनकाइमा में प्रेजेंट होता है. कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट. सेल वॉल थिनेस्ट कहां होगा? पेरेनकाइमा में सबसे पतला होगा. फिर कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा में थिकनेस बढ़ती जाएगी. सेल वॉल कंपोजिशन आपने क्या बोला था? सेलुलोज से बना हुआ है पेरेनकाइमा का सेल वॉल. एंड देन स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी, कोलेनकाइमा हमने बोला था सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, ये सब आ गए. लिग्निन, लिग्निफाइड सेल वॉल किसका था? स्क्लेरेनकाइमा. पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा को हमने बोला था अलाइव एट मैच्योरिटी, व्हाइल स्क्लेरेनकाइमा इज डेड एट मैच्योरिटी. देन व्हाट एल्स? फंक्शन. पेरेनकाइमा का फंक्शन हमने बोला था जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के लिए, फोटोसिंथेसिस, देन सिक्रीशन एंड स्टोरेज. कोलेनकाइमा का आपने फंक्शन बोला था गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू petiole and young stem
जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो। एंड स्क्लेरन कायमा के लिए भी आप वही बोल सकते हो, गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। एनीथिंग एल्स व्हिच वी लर्नड फॉर दिस थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स? कोई पॉइंट जो आपको याद आ रहा है, यू कैन मैसेज मी। ओके, मूविंग टू कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में वी हैव मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के हमने दो टाइप पढ़े, जाइलम एंड फ्लोएम, करेक्ट। अब हमने जाइलम के कंपोनेंट्स पढ़ना शुरू किए थे, तो हमने ये बोला था जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स में जाइलम के तीन ही यूनिट्स होते हैं। कौन से तीन? ट्रकीड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। एंड एंजियोस्पर्म्स में जाइलम के चार कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? आप याद करो। ट्रकीड्स, वेसल्स, देन जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा. Who is the main water conducting unit in case of tracheids? Sorry, in case of gymnosperms and pteridophytes? आपका आंसर होगा tracheids. Who is the main water conducting? Which is the main water conducting unit in case of angiosperms? आपका आंसर होगा vessels. Tracheids भी पास करते, कंडक्ट करते water, but vessels are more important over there. नेक्स्ट हमने वेसल्स के ट्रकीज के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, इफ यू कैन रिकलेक्ट। ट्रकीज हमने बोला था टेपरिंग एंड होता है, एंड वेसल्स को हमने बोला टेपरिंग एंड नहीं होता। उनका जो एंड टू एंड जो वॉल है वो ऑब्लिटरेटेड है, डिस्ट्रॉयड है, एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस चैनल, प्रॉपर चैनल फॉर्म करते हैं जिसके थ्रू पानी आराम से कंडक्ट हो जाता है, राइट। देन xylem fibers and xylem parenchyma are for support. Then we moved on to phloem. Phloem में हमने बोला in case of gymnosperms and pteridophytes, phloem के components are sieve cell, albuminous cell, phloem fiber, phloem parenchyma. Correct? शाबाश वाली सोलंकी, every point she is properly recollecting. बाकी लोग को भी I cannot see others trying to revise all the points. आप खाली सुन रहे हो। आई होप आपको ये या तो पॉइंट्स याद है, या तो आई होप आप आराम से एंजॉय कर रहे हो टर्म्स को। दो में से एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा, या आप मेरे साथ साथ रिवाइज करो या आपको वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं। ओके, फ्लोएम के यूनिट्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म स्टूडेंट्स। एंजियोस्पर्म के केस में यूनिट्स कौन से थे? सीव ट्यूब एलिमेंट्स। देन एल्ब्यूमिनस सेल के बदले कौन सा था? कंपेनियन सेल। एंड देन फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। सीव ट्यूब एलिमेंट्स एज वेल एज सीव सेल के बारे में हमने क्या बोला था? प्रोटोप्लाज्म बहुत ही थीन रहता है, एंड टू एंड वॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं, बट परफोरेशंस होते हैं, राइट है। एंड दीज परफोरेशंस वर नोन एज सीव प्लेट्स, करेक्ट। सीव प्लेट्स हमने इनको नाम दिया था। कंपेनियन सेल इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंड albuminous cell will control the metabolic activities of sieve cells in case of gymnosperms and pteridophytes. इतना पार्ट हमने खत्म किया था। Then we went on to types of xylem tissue based on the timing of development. So xylem tissues which are formed earlier are known as protoxylem, and xylem which is formed later is known as metaxylem. याद रखना कि ये मैं प्राइमरी जाइलम के बारे में ही बोल रहा हूं। I do not mean that this is secondary xylem. No, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जैसे होता है, हमने बोला ना प्लांट के लेटर, प्लांट के लाइफ में लेटर हाफ में आता है, ये वो नहीं है ये वाला मेटाजाइलम। मेटाजाइलम मतलब कौन? जैसे आप रेसिंग लगा रहे हो, है ना, तो फर्स्ट आपका फ्रेंड फर्स्ट आ गया भाग के, इमीडिएटली उसके बाद आप आओगे, सो दैट इज हाउ प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम होता है। क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम आप कैसे बोलते हो, या करेक्ट है, प्राइमरी एंड सेकेंड मेरिस्टेम आप कैसे बोलते हो? प्राइमरी मेरिस्टेम अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ, सेकेंडरी मेरिस्टेम अर्ली अपीयर्स लेटर इन द लाइफ ऑफ प्लांट। ऐसा केस नहीं है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम थोड़ी ही देर के बाद बन जाता है, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम पहले बन जाता है, बस। तो प्रोटोजाइलम पहले बनेगा, मेटाजाइलम बाद में बनेगा। बोथ ऑफ देम आर
प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के से ही बनते हैं, दोनों परमानेंट टिश्यूज है बट वो लोग इमीडिएटली बन जाते हैं। सो देयर आर प्राइमरी प्लांट बॉडी के कंपोनेंट्स हैं ये लोग। नेक्स्ट, फ्लोएम में भी हमने सेम बोला, प्राइम प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम इज फॉर्म्ड अर्लियर, मेटाफ्लोएम इज फॉर्म्ड लेटर। देन द काइंड ऑफ अरेंजमेंट क्या है इनके बीच में, तो हमने बोला अगर प्रोटोजाइलम, स्टूडेंट्स प्रोटोजाइलम के हिसाब से आपको देखना है, ओके। अगर प्रोटोजाइलम अंदर है, इनर इंटीरियर में है, तो हम बोलेंगे उसको एंडार्क कंडीशन। अगर प्रोटोजाइलम एक्सटीरियर में है तो हम बोलेंगे एक्सार्क कंडीशन। सो इसके एक्सप्लेनेशन में यू शुड नेवर इवन यूज द वर्ड मेटाजाइलम, आपको उसको यूज भी नहीं करना, आप सिर्फ प्रोटोजाइलम वर्ड यूज करते रहोगे और पूरा एक्सप्लेनेशन आपने दे दिया, करेक्ट। आई विल रिपीट, प्रोटोजाइलम इफ इट इज प्रेजेंट इनर then it is known as end-arc condition. If protoxylem is present in the exterior, it is known as exarch condition. Okay, next let us proceed ahead. इसके बाद हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, इतना ही किया था as far as I can recollect. Please let me know in the chat box अगर आपको कोई और कंसेप्ट याद आ रहा है जो हमने किया था। I think this was it. Please send me your reply in the chat box. इसके अलावा और कुछ किया था हमने? नहीं। All right. कितने लोगों को ये जो भी मैंने रीड आउट किया स्टार्ट टू एंड पूरा चैप्टर, कितने लोगों को ये सारे पॉइंट्स याद हैं? प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपका कैमरा ऑन है आप कैमरा में हाथ ऊपर कर सकते हो। ओके, सृष्टि को याद है, पलक को याद है, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? वारी सोलंकी, रेबेका, नीलम को याद है, वेरी गुड नीलम। वेल्स, भाई इसको भी याद नहीं है? सारा, मानसवी, खुशी, जोहा, कैमरा ऑन किया बट कैमरा में दिख नहीं रही है, दिस इज सेकंड वार्निंग। दृष्टिका, तेरा भी कैमरा ऑफ है। अर्पिता, अर्चिता, अब इस बार मैं बोलूंगा नहीं, एल्स स्ट्रेट अवे रिमूव यू पीपल। यस, प्लीज रेज योर हैंड। अगर यहां तक आपको याद है तो रेज योर हैंड। मानस, मानसी बरनवाल, ओके। देविका, शाबाश, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, ऋषु रिकॉर्डिंग अभी थोड़ा पॉज कर दे,